Known for ancient architecture, historical significance, and unique features, Lakha Mandal, an ancient Hindu temple complex situated in the region of Dehradun district in the state of Uttarakhand, India, is a must-visit destination. The temple is dedicated to Lord Shiva and is popular among the Shaivites, who believe that a visit to this temple shrine will end their misfortunes. The scenic beauty of the surrounding area and the chance to explore the ancient stone carvings and the temple's connection to the Mahabharata is incredible. Lakha Mandal gets its name from the two words Lakha or Lak meaning many and Mandals meaning temples or lingam. Plenty of artistic works were found in the excavations by the Archaeological Survey of India. This temple lies 128 kilometers from Dehradun and 35 kilometers from Chakrata on the Mussoorie-Yamunotri road. It is built in North Indian architectural style known as Nagar Shaili, which is common in the hilly regions of Garhwal and Himachal Pradesh state. The Yamuna river flows alongside Lakha Mandal village, where the temple is situated. This Nagar-style temple of Lord Shiva was built in 12th to 13th century. A large number of sculptures and architectural members spread in the vicinity, such as the remains of more shrines of the same cult in the past. Presently, only this temple is survived. The earliest evidence of structural activity at Lakha Mandal goes back to 5th to 8th century on the basis of brick structure noticed below the stones used to build the pyramidal structure. A stone inscription from 6th century of the site records the construction of Shiva temple at Lakha Mandal by Princess Aishwarya, who belongs to the royal race of Singapura, for the spiritual welfare of her late husband Chandragupta, the son of the king of Jalandhar. In the temple complex, there is a shivling made of granite which shines when wet and reflects its surroundings. It acts like a perfect mirror. It is said that if you see your face, your sins will be gone. It definitely is a unique experience. We spent time watching ourselves in this natural shivling mirror. Hare Hare Mahadev. Hare Hare Mahadev. The surrounding landscape is beautiful, with Yamuna river flowing by the side, making the journey to the temple itself enjoyable. This temple is relatively undiscovered and is not as widely known as the other attractions, offering a more secluded and intimate experience. Lakha Mandal is also one of the places that are mentioned in the holy book of the Hindus, the Mahabharata. The temple is a significant place of worship for Hindus and holds cultural and spiritual value. What a piece of ancient history we got to witness at an altitude of approximately 3,800 feet above the sea level, nestled in the lap of nature, surrounded on all sides by mountains. Lakha Mandal Temple is worth a visit for those interested in history, culture, and spirituality, offering a unique and memorable experience in a beautiful setting. Lakha Mandal witnessed the birth of the world's first Shivalinga, initiating Shivalinga worship. In a vibrant tale from the Ling Purana, Brahma and Vishnu's fiery debate led to divine intervention by Lord Shiva, establishing Mahamandaleshwar Shivalinga. Vishnu and Brahma became its first worshippers. The temple's rich history also links to Yudhishthira during the Pandavas' exile, highlighting deep adoration for Shiva and Ma Shakti's protection and blessings. This renowned pilgrimage site is enriched with captivating legends. Har Har Mahadev Shiv Shankar, 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 Har Har Namo Namo Shiva. Regarded as the birthplace of the world's first Shivlinga, Lakha Mandal marks the inception of Shivalinga worship.
According to the Ling Purana, a fiery debate between Brahma and Vishnu resulted in the manifestation of a burning flame pillar. Astounded and unable to trace its origin, Brahma and Vishnu accepted defeat, prompting Lord Shiva to bless them with humility. Following this divine intervention, the first Shivlinga was consecrated at Lakhamandal. Vishnu and Brahma are believed to be the initial worshippers of the Mahamandaleshwara Shivalinga, resonating with the divine sound of Om. Another legend associates the temple's existence with Yudhishthira during the Pandavas' exile, saved by Ma Shakti from a plot by the Kauravas to burn them alive. Shiva and Ma Shakti are venerated at Lakhamandal, symbolizing protection and blessings for the virtuous souls of the Pandavas. Two west-facing Dwarpals guard the temple's entrance. Local belief, supported both by locals and saints, suggests that placing a deceased body in front of these Dwarpals with a temple priest sprinkling Gangajal briefly revives the person. During this revival, the individual utters Lord Shiva's name and consumes Gangajal. Subsequently, the soul departs, granting the deceased a form of eternal rest. On Mahashivratri, spending the night at the temple and chanting Lord's name while gazing at the Shivlinga is believed to bless women with fertility. Lakhamandal experiences diverse temperatures annually. Summers from March to June bring pleasant weather with average highs of 25 to 30 degrees Celsius. Monsoons July to September witness lush greenery with occasional rainfall. Winters October to February are chilly with temperatures ranging from 0 to 15 degrees Celsius, offering a serene atmosphere amidst historical and spiritual surroundings. इस मंदिर का निर्माण एक नागर शैली में हुआ था कि जैसे हमारे दादा लोग कहा करते थे कि ये पहले एक जंगल था, तो जंगलों के बीच में एक गाय चुगने आती थी और सीधे मंदिर के अंदर चली जाती थी। अपने एक थन से दूध की धार शिवलिंग में डालती थी, परिक्रमा करके गाय शाम को लेट चली जाती थी। बस जिनकी वो गाय थी वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि हमारी गाय कहाँ जाती है, किसी के खेतों को नुकसान तो नहीं करके लाती है। एक बार गाय का पीछा किया, जैसी गाय मंदिर के अंदर गई उसने देखा कि हमारी गाय ने तो एक देवनगर की खोज की। उसी टाइम यहाँ पे 3 कास्ट के पंडित लोग बुलाए गए, जिस मंदिर के अंदर 4 मंथली पूजा करते हैं। यहाँ पे मन की इच्छा प्राप्त होती है। जैसे कोई भी स्त्री हो, कोई भी महिला हो, उसके कभी बच्चे नहीं हो रहे हो, कभी माँ नहीं बन पा रही है। जब यहाँ पे महाशिवरात्रि होती है तो शिवरात्रि के टाइम पे मंदिर के अंदर एक जोत जल रही है, अखंड जोत। अच्छा, खाली स्त्री उस जोत को बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करेगी तो 1 साल के भीतर वो उत्तम पुत्र को जन्म देती है। यहाँ पे 60 या 70 साल की औरत ने भी पुत्र पाने की इच्छा प्राप्त करी है, तभी जाके इसका नाम मरणेश्वर महादेव पड़ा, इस मंदिर का नाम। ये आदि केदार है। एक्चुअली इस गांव का नाम पहले लाखामंडल नहीं था, गांव का नाम पहले मड़ा था। मड़ा का अर्थ हो गया कि जैसे कोई भी आदमी हमारे पट्टी में पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई भी आदमी पहले मर जाता था तो आदमी सोचता कि भाई आदमी कैसे मरा, इस पे क्या दुख क्या बीमारी थी। तो मंदिर के पीछे 2 मूर्तियां खड़ी है, द्वारपाल देव और दानव। तो उसके बीच में पहले मरे हुए आदमी की डेड बॉडी रखी जाती थी। जो पुजारी होता था वो गंगा जल या दूध का छिंटा मरे हुए आदमी में मारता था, मरा हुआ व्यक्ति थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाता था कि और वो अपनी अपनी प्रथा बता देता था कि मेरे को कैसे कैसे मृत्यु आई। ये प्रथा तब से इस जगह पे बंद करी गई। गांव की एक औरत थी, उसका खाली एक ही लड़का था। जिसी टाइम उसके लड़के की डेथ होगी तो पुजारी द्वारा आमंत्रित दूध या चावल को उसपे छिंटा मारा, हो थोड़ी देर के लिए जिंदा तो हो गया था। उसके माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया था कि तब से प्रथा इस जगह पे बंद करी गई है। पड़ गया इसका नाम लाखामंडल। लाखामंडल का अर्थ है कि जब पांडवों को एक लाक्ष्य ग्रह बनाया था, कौरवों ने पांडव जलाने के लिए एक महल बनाया था लाक्ष्य ग्रह। तो लाक्ष्य ग्रह तो पांडव लोग बच गए थे। तो लाक्ष्य ग्रह में एक व्हेलनी थी कैट, उसके 5 पुत्र एक लाक्ष्य ग्रह में घड़े के अंदर पैदा कर रखे थे। यानी लाक्ष्य ग्रह कौरवों ने पांडव जलाने के लिए बनाया था, जल की व्हेलनी के पुत्र थे। तो उन्होंने श्राप दिया था पांडव लोगों को कि जिस स्थान पर आप अज्ञातवास में रहोगे वहां पे जाके आपने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करनी है। तो 12 साल को पांडवों को वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास में पांडवों ने इस जगह पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी है और विराट राजा के यहाँ पे उन्होंने नौकरी करी है। इस सामने एक शिवलिंग है, धर्मराज युधिष्ठिर। यहाँ पे बैठ के पांडवों ने शिवलिंग में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी, तभी जाके इसका नाम लाखामंडल पड़ा। जैसे अंदर वाली शिवलिंग है वो शिवलिंग है सतयुग की,
ये वाली शिवलिंग द्वापर युग की है। ऐसे रंग के शिवलिंग रामेश्वरों के मंदिर में पाई जाती है। ये त्रेता की है, कलयुग की आगे, जिसमें आप जल चढ़ोगे तो आपका चेहरा स्फटिक शिवलिंग के अंदर दिखाई देगा। उस शिवलिंग तब का है, कहते हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया तो सारे भस्म हो गए। तो उनके कुल में भागीरथी जी ने जन्म लिया था। उन्होंने शिव की तपस्या करी, गंगा यमुना को मृत्युलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं के लिए सबसे पहले उस शिवलिंग की स्थापना करी थी। ऐसे भी वो शिवलिंग अष्टदलों के बीच में विराजमान है। जो भी शिवलिंग अष्टदलों के बीच में विराजमान होती है, उसके मात्र दर्शन करने से सचित्र पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव की परिक्रमा आदि होती है, आपने पूरी करी, पूरी नहीं करते शिव की परिक्रमा। अच्छा, आधा ही करते हैं। जहाँ पे शिवलिंग होगी ना, हाँ। जैली होती है, उसको कभी लंगते नहीं है। अच्छा, फिर वही जैली वहीं से मुझे- वापस रिटर्न आ जाओ। वापस रिटर्न आओ। मैंने आगे इधर ही से आ जाओ। अच्छा, मुझे नहीं पता। जिसने इस मंदिर की खोज की, गाय माता ने, उसके पैरों के निशान है चारों तरफ। ये पहले दलदली मिट्टी हुआ करती थी, अच्छा जहाँ पैर रख देते वहीं पे निशान पड़ जाता था। अच्छा, धक्का हुआ इसमें। दो दो चल रहे वो सही थी। अगर आप वो नहीं ले होते तो हम यहीं आपका ये करते थे इंतजाम। वो जो दूसरे पुजारी है जो ना, जल रही ना, वो हमेशा जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं। उसके घी तेल चढ़ता ना उस पे। अखंड अच्छा। ज्योति मंदिर के अंदर में, अंदर मेन मंदिर किराए पे। अच्छा इसको कहते हैं जले। इसको कभी लगते नहीं है। हाँ, अंदर शिव है, ये पार्वती मैया है, ये अच्छा लेटी हुई है, तो इसको कभी क्रॉस नहीं करते, इसकी ओह। आदि होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ये माता महिषासुरमर्दिनी है। अच्छा लिम्बा राक्षस एक भैंसे के रूप में आया, उसका वध कर रहे हैं, तभी की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, माता महिषासुरमर्दिनी। इसकी आदि होती है, यही से आपस रिटर्न होते हैं। आता देते हैं हमको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अच्छा, ओके। हाँ। आप यहीं इसी गांव के हो? पुजारी का लड़का। अच्छा, वाह, ये मूर्तियों को देखो। ये इस मंदिर के द्वारपाल है। ये अच्छा दानव है, यानी ये राक्षस है। अच्छा, इसके मस्तक में मसान की खोपड़ी है। ये हाँ, दानव है, ये देवता। see on his forehead। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सलून है। यहाँ पे आप रुके एलम कॉलेज, उसके नीचे एक आपको एक गुफा दिखी होगी, गुप्तेश्वर हाँ। महादेव। अच्छा वहां जाके इसका रास्ता निकलता है। अच्छा, इससे ये हाँ। कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षी गृह बनाया था जलाने के लिए। अच्छा तो एक विदुर था, विदुर ने जो लाक्षी गृह बनाया था, कौरवों ने पांडव जलाने के लिए बनाया था। तो इसी जगह से वो रास्ता, ये रोड के बैक साइड में नीचे अच्छा। गुफा, वहां जाके निकलता है। अच्छा, ये धर्मराज युधिष्ठिर लिंग है। ओ धर्मराज। और इसी के बीच में पहले डेड बॉडी जिंदा होती थी। कोई अच्छा भी एक बार मृत्यु को प्राप्त होता था, हाँ। इस जगह पे डेड बॉडी रखी जाती थी। अच्छा जो पुजारी होता था, पहले के लोग पुजारी सच्चे थे, हाँ। तो दूध या चावल उस पे छिंटा मारते थे, थोड़ी देर के लिए जिंदा तो हो जाता था। और यहीं से मुख से राम नाम का शब्द लेता था, फिर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। अगर किसी ने अच्छे काम किए तो देवता अपने तरफ उसकी डेड बॉडी खींचता था। अगर किसी ने बुरे काम किए तो दानव अपने तरफ उसकी डेड बॉडी लेता था। अच्छा इसको कहते हैं यमराज का द्वार। इस शिवलिंग के नीचे कहते हैं कि दुनिया में कुछ ना रहा, दुनिया में तो दुनिया के लिए, इस शिवलिंग के नीचे दुनिया के लिए 2.5 दिन का भोजन है। इतने 2 years 1 हाँ। इसके नीचे भोजन है। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक लेख है, ब्रह्मलिपि है, जिसमें कि 14 लाइनें लिखी गई। एक साधु ने 2 लाइनें पढ़ पाई। अच्छा। उसने यहाँ का इतिहास बता दिया कि यहाँ पे ऐसे से। आप लोग कभी केदारनाथ गए हो? बद्रीनाथ गए? बद्रीनाथ गए, केदारनाथ नहीं गए। अब आपको मालूम होगा कि केदारनाथ में किस चीज की पूजा होती है, मालूम है आपको? बताइए। वहाँ पे धड़ की पूजा होती है, पीठ की। अच्छा। पूजा की जाती है, इसलिए करी जाती है। जब पांडवों को शराब मिला था भीलने का, उन्होंने पाप मुक्त करने के लिए इस जगह पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना तो करी है। अच्छा तो यहाँ से संजीवनी पर्वत पर रवाना हो रहे थे, तो उनको एक पहाड़ दिखा, जिस पहाड़ का नाम था केदार कांठा। अच्छा तो केदार कांटे में शिव ने एक भैंसे का रूप लिया। वो भैंसा भागा वहां से केदार कांटे से केदार घाटी। तो केदार घाटी में उसने अपना सिर एक दीवार के अंदर घुसा दिया। तो सिर कहाँ पहुंचा? उसका नेपाल पशुपतिनाथ में। अच्छा जो पीछे का भाग तो केदारनाथ में, इसलिए वहाँ पे धड़ की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा, नहीं पता था हमको, अभी पता चला। पंचलिंग है, 5 पानी ने स्थापित की थी, 5 शिवलिंग। चार एक छोड़ी नीचे। ये 207 की खुदाई पे निकला है। वाह, 207 की, तो सारी शिवलिंग है यहाँ पे। सारे 200 यहाँ पे पहले खेती करते थे, मक्की की खेती या मिर्च लगाने, इसके ऊपर। तो आर्कियो डिपार्टमेंट है, प्रत्यत्व विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा उन्होंने एक साइंटिस्ट आई थी रशियन से। अच्छा उसके बाद अंडरग्राउंड कैमरा था, उसने इस जगह पे शिफ्ट करी। उसने कहा कि इसके नीचे तो कुछ और ही चीज है निकलने, अच्छा। तब जाके इसकी खुदाई करी गई है। अच्छा। कौन से साल में ये हुआ था? 2007।
207। 2007। अभी मतलब ज्यादा दिन भी नहीं हुए, ये सब बाहर निकले तभी। ये दबाव होता है ना मिट्टी की इसके ऊपर। अच्छा, और ये 207 के मूर्ति हैं ये सारे नहीं 2007 में ये बाहर आई है। बाहर आए, लेकिन कितने ये तो ये पुराने 5000 और साल पुराने हैं। हाँ जब पांडव लोग 5000 साल पहले पुराने में आए थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने अच्छा। बनाए थे शिवलिंग सारे। हाँ देखना है ना कौन सा प्रॉपर स्टेप है। होते हैं ये भी एक मंदिर ही था ना ये। हाँ ये हमारे टाइम पे उन्होंने रात चलता था। लोग कहते हैं कि मुंगल तो इस जगह पहुंचे नहीं थे, इनको गोरखों का रात चलता था इस जगह पे गाड़े में। उन्होंने खंडित किए सारे मंदिर। इसके ऊपर वो लाइन जो है ये नहीं है, वो आगे वो आ गया उनका बढ़ता कहाँ पे? कितनी आगे हुए? किधर है भैया? सामने जाओ बोल रहे लाइन में लगे ना उससे आगे। आपका जगह थे उसको इसमें नहीं है ना वो पार्वती माँ का ऐसे सिर्फ भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। भारत में सबसे बड़ा शिवलिंग इसी के बारे में क्या चारों तरफ हाथ नहीं घुसता, कितना भी बड़ा आदमी हो। अच्छा एक बार देख लो नीचे आके। हाँ इट्स द बिगेस्ट। ये तो मेरा वैसे ही नहीं पहुंचेगा। और मेरा हाथ भी लंबा, मेरा हाँ। हाथ पहुंचता है। ओह, उसे जलाने के लिए जैसे कोई बाहर से आ रहा है, उसके लिए कुछ दे रहा, तो हम लोग उसके नाम का तेल या घी चढ़ाते हैं मंदिर में। अच्छा मेरा तो बहुत ज्यादा आता है। और उठाने के लिए मैं 100 किलो। Pandava Cave. It is believed that the cave was built by the Pandavas during their exile. The cave is located near the prominent Shiva temple in Lakhamandal and is also known as Gupteshwar Mahadev. Inside the cave, there is a Swayambhu Shivling that appeared naturally, which was worshipped by Pandavas during their stay. The length of the cave is around 1 kilometer. As per folklore, the Pandavas used this cave as a hideout to escape from Kauravas. While residing here, they worshipped Lord Shiva and built lakhs of Shivlings, which is why the place is known as Lakhamandal. According to another legend, the Pandavas used this cave to escape from the Shalak Palace, also known as Lakshagriha in Sanskrit, which was built by the Kauravas to kill them during their exile. However, some other ancient scripts said that the Shalak Palace was located in Uttar Pradesh. यच्च किंचित क्वचिद् वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किमस्ति तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमिन्दु कैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय